Good morning. A very good morning and welcome to ABSC Comschool. It has been long since I met the parents and the kids. I think out of these 3 to 4 months, though I meet the children almost every day, and many a times I go to their places to meet them. It's my duty to take feedback. It's my duty to see what is working, what is not working for them. At the same time, I encourage the parents to keep sharing feedback with me so that we can work together and we can move ahead with a much better program. So I have been meeting people. I keep sharing, sending messages individually in groups. Many respond, many do not respond. It's all okay. I respect everyone's decision. Parents who respond, I respect them. Parents who don't respond, I respect them because I understand timing, busy schedules, many factors. So apart from the communication, now I'm taking the communication also to the second level, and maybe I'll find some time to explain to you when I say second level, what does it really mean? Let me first explain this tuition concept, which I'm launching from 1st of February. As I say, it's not a tuition. And I said the tuition in new avatar. Tuition is not a bad thing, or tuition is not a negative thing that people think. People have a wrong perception about tuition because the way it has been sold in the market by inexperienced people, untrained people, tuition today means जाओ होमवर्क कराओ और भेज दो. एक ग्रुप में चाहे जितने भी बच्चे हो जाए, क्लास 2 के बच्चे हो, 4 के बच्चे हो, 8 के बच्चे हो, 10 के बच्चे हो, सबको एक रूम में बैठाओ, जमीन पे बैठाओ, होमवर्क कराओ एंड हो गया. But I thought of I thought of 3-4 levels ahead of this. And I said, this is transforming unique independent thinking in organized norm reference assessments. And this is my own abbreviation. मैं कहीं से कॉपी नहीं करता हूँ. I think a lot. मैं बहुत सोचता हूँ. And that's why I said, each children is unique. Each child is amazing. So let's transform their unique and independent thinking in very organized way. And this thinking will develop only when we start assessing them at regular intervals. But does it mean that you have to spend a lot of money on this? No. Everything is same. The only thing is we are going in a more organized way. We are going in a mentoring way, monitoring way, and the measuring way. If you want to improve something, आपको measure करना पड़ेगा. हमें अपने घर को इनकम अगर इंप्रूव करना है तो हमें उस इनकम को मेजर करना पड़ेगा. हम कितना खर्च करते हैं, क्या करते हैं, कहां पे कट डाउन करना है, कहां पे बढ़ाना है, अगर मेजर नहीं करेंगे तो वी विल बी इन अ ट्रबल. So let me explain to you about something about Pareto principle जो हमारे लाइफ में यूज होता है. It's nothing new. हम बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन हम इम्प्लीमेंट अपने घर में डेली करते हैं. So let's talk a little bit about the Pareto principle. And let me tell you कि what is tuition and why transformation, क्यों बच्चों को ट्यूशन चाहिए होता है, what is the reason? So when it talks about Pareto principle or 80-20 principle, let me come to the board and just explain to you briefly. हम सबके लाइफ में 80-20 प्रिंसिपल हर दिन इंप्लीमेंटेड है, हर दिन. उसके बिना हमारा काम ही नहीं होता. 80-20 rules. It means we all know, हम बहुत सुनते भी हैं, that 80% of the wealth in India or any country is held by 20% of the people. ये 20% ही है जो 80% of wealth को या मनी बोलो, जो भी बोलो, इस चीज को रखा हुआ है. हर कंट्री में होता है ना. It's not only with India. So 80%
80% of my income, 80% of my income goes into loans and payments. हमारा 80% ऑफ जो हमारा इनकम होता है वो सारा लोन और पेमेंट में चला जाता है. हम 20% इनकम पे अपना जो भी खर्चा वर्चा जो भी है वो काम करते हैं, राइट. सो ये 80-20 प्रिंसिपल इज अप्लाइड एवरीवेयर. हमारे ट्यूशन हमारे एजुकेशन में कैसे अप्लाई हो रहा है ये? व्हाई डू आवर किड्स गोइंग फॉर ट्यूशंस? क्या जरूरत पड़ जाती है उनको? क्यों जरूरत पड़ जाती है? जब हम इतना पैसा दे रहे हैं स्कूल में, हम इतना फी दे रहे हैं स्कूल में, वी आर गोइंग टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल, फिर ये ट्यूशन की जरूरत कहां से पड़ जाती है? माय एनालिसिस सेज दैट a school class has 30 to, let's say 25 to 30 people, 25 to 30 students minimum मैं बोल रहा हूं, होने को तो और भी बहुत होते हैं. One teacher is teaching. Now what happens? 80% of the students, they only absorb 20% of the teaching. It means इसमें एवरेज भी बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, वेरी गुड भी होते हैं, एक्सेलेंट बच्चे होते हैं. So 80% of the kids in the class, 80% of 30 people absorb only 20% of the teaching. जो टीचर पढ़ा रहे हैं स्कूल में, क्लास में, वो क्या पढ़ा रहे हैं उसका सिर्फ 20% जो टीचिंग होती है, वो 80% हमारे लोग सिर्फ 20% ही अब्सॉर्ब करते हैं. इट मींस ओनली 20% जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, दे अब्सॉर्ब 80% ऑफ द टीचिंग. और ये 20% ट्यूशन को इनको ट्यूशन की जरूरत शायद नहीं पड़ती है. ये 80% को ट्यूशन की जरूरत पड़ती है. व्हाई? रीजन वन, कि स्कूल में जो टीचर ने एक बार पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया. हमारे हिंदी में कहा जाता है कि एक बार जवान से बातें निकल गई तो निकल गई, वो वापस नहीं आ सकती. आप टीचर के पास जाते नहीं हो, बच्चे टीचर के पास वापस जाते नहीं है. टीचर स्कूल में अवेलेबल है, घर पे अवेलेबल नहीं है. सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो नहीं हो रहा है, उनके पास रिकॉर्डिंग्स नहीं है. अब अगर रिकॉर्डिंग्स नहीं है तो हमारे बच्चे कहां पे रिविजन करेंगे? बिकॉज हमारे बच्चे वापस आ जाते हैं घर पे, तो बहुत ही, ये सिर्फ 20% बच्चे जो रिवीजन कर लेते हैं. 80% बच्चे ना रिवीजन करते हैं, ना उनके पास उनको याद रहता है कि क्या पढ़ाया गया था. तो आखिर जब ये बैकलॉग क्रिएट हो रहा है, हमारा इतना बैकलॉग बच्चों में क्रिएट हो रहा है, ये बैकलॉग कहां से कवर होगा? कैसे कवर करेंगे बच्चे? आखिर उनके पास रिकॉर्डिंग नहीं है, उनके पास टीचर को एक्सेस नहीं है. हमारे पेरेंट्स टीचर के पास नहीं जाते हैं कि भाई टीचर जी बता दो, इस बच्चों को समझ में नहीं आया. ज्यादा अगर प्रेशर डालते हैं टीचर में, हम डर लगता है कि यार बच्चों के मार्क्स ना काट दे टीचर्स, अगर मैं ज्यादा प्रेशर डालूंगा तो. ये डर भी है हमारे अंदर. अल्टीमेटली क्या होता है? अच्छा बेटा जाओ, ये इतना बैकलॉग हो गया, एग्जामिनेशन आ रहे, टेस्ट आ रहे, जाओ ट्यूशन ले लो. और ये 80% बच्चे हैं जो ट्यूशन में जाते हैं. इज इट रिक्वायर्ड? एक सोल्यूशन हो सकता है स्कूल को, अगर वो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दे सारे ऑफलाइन क्लासेस के, आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. लेकिन वो मे बी अभी नहीं हो पाएगा. आई कैन नॉट सजेस्ट, ये मेरा काम नहीं है, आप लोगों का काम है. आप सजेस्ट करो. ये एक बैकलॉग क्रिएट हो रहा है, ठीक है, मान लो बैकलॉग क्रिएट होगा, आप बच्चों को ट्यूशन भी भेज रहे हो. अनदर चैलेंज कहां पे आ रहा है हमारे पास बच्चों के लिए, एंड ये भी बहुत ही एक एविडेंट चैलेंज है. वी फील, हमें लगता है कि हमें बच्चों को कराटे भी सिखाना है, इंस्ट्रूमेंट्स भी सिखाने हैं, ठीक है, ट्यूशन भी भेजना है, फुटबॉल भी खेलना है. मेरे पड़ोसी के बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं तो मुझे स्केटिंग पे भी करवा देना इनको. नहीं, हमें लगता है कि हम पैशन क्रिएट कर रहे हैं बच्चों में. नहीं, ये पैशन नहीं है, हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं बच्चों में. ये पैशन नहीं है, हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं बच्चों में. ये बच्चा तू कराटे भी सीख ले, इंस्ट्रूमेंट भी चला जा, ट्यूशन भी चला जा, एक आधा घंटा फुटबॉल भी खेल लो, स्केटिंग भी कर लो, उसके बाद पार्टी में भी जाना है, उसके बाद तुम्हें सारे होमवर्क भी करने हैं. यानी बच्चा कहां से करेगा? पैशन मींस, पैशन का मतलब क्या होता है? बच्चों में ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट करना है कि वो खुद करे सब कुछ. मुझे लगे कि मुझे यही करना है, एक ही चीज करना है.
मैं अपने बच्चों को सिर्फ एक या दो चीज पे ही ध्यान दिलवाऊंगा, चाहे 3 साल के लिए हो जाए। प्लीज गो ऑन म्यूट, प्लीज गो ऑन म्यूट, गो ऑन म्यूट, प्लीज गो ऑन म्यूट। तो गो ऑन म्यूट, मैसेज कर दो ना। go on mute please, August. So what we are doing, we are actually, हम बच्चों में हमें शौक, हमें शौक है एज अ पेरेंट्स कि हम बच्चों को ये भी सिखाए वो भी सिखाए, दैट्स फाइन, बहुत अच्छी बात है। हम बच्चों में पैशन क्रिएट क्यों नहीं कर रहे? और पैशन का मतलब ये नहीं हो, पैशन का मतलब ये होता है कि मैं कराटे भी सिखा दूं और 3 महीने बाद कराटे भी छोड़ दिया, एक गिटार सिखा रहा हूँ 3 महीने बाद गिटार भी छोड़ दिया, एक मैं फुटबॉल खिला रहा हूँ अपनी मर्जी से फुटबॉल खेल रहे हैं, स्केटिंग करवा रहा हूँ 2 महीने बाद स्केटिंग भी छोड़ दिया, तो सीखा क्या बच्चों ने? कुछ नहीं सीखा। लेट्स उसको पैशनेट बनाने के लिए एक या दो इनमें से कोई एक चीज 1 साल 1.5 साल 2 साल करने दो, एक चीज पे ध्यान दो। मेरे पड़ोसी बच्चे ये सीख रहे हैं, उसको ये कंपटीशन में आ गया तो मेरा बच्चा भी क्यों नहीं करेगा? नहीं, जरूरी नहीं कि वो बच्चा कर लिया तो आपका बच्चा कर ले, या मेरा बच्चा कर लिया तो उसका बच्चा कर ले, नॉट नेसेसरी। उसका सारा इंपैक्ट ये होता है कि बच्चा जल्दी जा, ट्यूशन करके आ, होमवर्क किया नहीं किया, एग्जाम में स्कोर क्यों नहीं आए? अरे कहां से आएगा? हमने अपने बच्चों को टूल्स दिया ही नहीं है। हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए टूल्स नहीं दे रहे। वो एक जाके ट्यूशन पढ़ना, एक होमवर्क करना, वो टूल नहीं होता, दैट्स नॉट अ टूल। हम अपने बच्चों को टूल नहीं दे रहे। हम ऑफिस में जॉब करते हैं, हम अपने बॉसेस को बोलते हैं, बॉस गिव मी अ टूल टू वर्क। मेरे पास है नहीं कुछ टेक्नोलॉजी तो मुझे काम करने के लिए, मैं इतना स्लो मैनुअली नहीं कर सकता हूं। जब हम मैनुअली नहीं कर सकते, हमें सब कुछ ऑटोमेटेड चाहिए, तो फिर बच्चे को हम क्यों इतना बोल रहे हैं कि बच्चा ये भी कर, 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 और स्कोर तो आ ही नहीं रहा तुम्हारा, कहां से आएगा स्कोर? सो व्हाट आई एम सेइंग, let's not get into this. When I talk about transformation, what does it mean? It means you as parent, me as father of 2 kids, मैं अपने बच्चे को कहीं एक या दो चीज पे पैशनेट करूंगा, जहां पे उसका मैक्सिमम इंटरेस्ट हो, वो चाहे गिटार सीख ले, चाहे स्केटिंग कर ले, या जो भी हो। Let me give time to my child to practice on his task. Let's give him technology. कि मैं उसको सिर्फ बोलूं कि तुम मैनुअल में सिर्फ कॉपी पे लिखते रहो, नहीं, उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना है। उसको ऐसे ऐसे सम दो, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो ऑनलाइन कि उसके अंदर वो इंटरेस्ट क्रिएट हो। जब उसको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, दिखने लगेंगे, यार मैं ये सम मैंने किया, मैं तो सही हो गया, ये सम मैंने किया, मैं तो सही हो गया। दैट इज द टाइम व्हेन ही विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि मेरे पास प्रेशर नहीं है, और वो प्रेशर नहीं, वो पैशन क्रिएट होगा। अनदर थिंग इज, it's not only education that we are talking about, it's not only the knowledge, bookish knowledge, नहीं। our child, जब हम academic excellence पे जा रहे हैं, तो a child has to be disciplined also. Discipline is important. Now when I say discipline, what does it mean? He has to create a habit, he has to get into a culture of self study. मुझे ट्यूशन हटवाना है उससे, मैं ट्यूशन मार के नहीं हटवा सकता हूं। जस्ट बिकॉज मैं पैसे बंद कर दूं, उसका फी बंद कर दूं, ट्यूशन बंद हो जाएगा, दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन। वो सेल्फ स्टडी का एक कल्चर उस बच्चे के अंदर क्रिएट करना है। वो सेल्फ स्टडी का कल्चर आएगा वो डिसिप्लिन होने से। Second another very important thing that we always talk about is, when I say discipline, it also means a lot पंक्चुअलिटी। हम स्कूल के बस पकड़ने के लिए दौड़ते हैं पीछे, छूट न जाए। एक कम्युनिकेशन क्लास में आने के लिए 4 मैसेज डालने पड़ते हैं, क्यों? आखिर एक बच्चा अगर वहां बस स्टैंड पे डिसिप्लिन है, तो कम्युनिकेशन क्लास में क्यों नहीं डिसिप्लिन हो पाता है? इज इट द मनी डिफरेंस? इज इट द मनी? आप मनी के पैसे सोच रहे हो, यहाँ पे भाई स्कूल का फी दिया, बस का फी दे रहा हूँ, बस अगर छूट गया तो मुझे टैक्सी में ले जाना पड़ेगा, गाड़ी में ले जाना पड़ेगा, टाइम नहीं है, पैसे नहीं है। यहाँ पे आपको पैसे नहीं लग रहे तो छोड़ना यार, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, रिकॉर्डिंग देखे ना देखे क्या फर्क पड़ता है, होमवर्क मैंने दिया है, करे ना करे क्या फर्क, कौन सा मुझे यहाँ पे पैसा देना पड़ रहा है? नो,
ये माइंड से हटाओ पहले। ये अपने माइंडसेट से पेरेंट्स को हटाना पड़ेगा कि ये फ्री है तो कोई मतलब नहीं है। नहीं, मेरे जैसे लोग तो मैं निकाल भी देता हूं चाहे फ्री भी हो। इट हैज टू बी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन in all aspects, in all the fields of life. A child has to be disciplined. तभी वो कल्चर आएगा, तभी वो समझेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। And that is why when I say tuition, I am totally in favor of a boarding life. मेरे बच्चे बोर्डिंग पे नहीं रहे, लेकिन मैंने अपने बच्चों को अपना बोर्डिंग एक्सपीरियंस दिया है पूरा। मैं आपके बच्चों को जो भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, मैं उनको बोर्डिंग डिसिप्लिन में ला रहा हूं। और बोर्डिंग डिसिप्लिन इतना आसान नहीं होता है। बोर्डिंग में एक कल्चर क्रिएट होता है। वहां पे डंडे से या कैरेट देकर, गाजर देकर नहीं काम किया जाता है। वहां पे एक अपने आप में बचपन से क्लास 1 से ही एक कल्चर होता है। वहां हमें कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती, वहां हमें कोई प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती। हम स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो जाते हैं और हम पढ़ाई में भी अच्छे हो जाते हैं। और हम, सबसे अच्छी बात है दैट फ्रॉम क्लास 1 हमारे कोई भी स्कूल में, ये जो एक अच्छा लीडर होगा, अ लीडर, अ गुड लीडर ऑलवेज मेक्स मेनी मोर लीडर्स। एक जो अच्छा लीडर होगा वो और भी लीडर्स बनाएगा, वो कभी किसी को मैनेजर नहीं बनाएगा। सो मेक योर चाइल्ड, गिव योर चाइल्ड the quality of a leadership, not a managerial quality. Make every child a leader. When I say leader, what does this mean? It means independent decision, independent decision making, independent decision making. बच्चों को अपने independent decision making skill बनाने दो। Another very important, critical thinking. सिर्फ हम 90% स्कोर लाने से, 80% लोन लाने से पेरेंट्स को खुश नहीं होना चाहिए। कैन योर चाइल्ड मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन? आप अगर घर पे नहीं हो, उसको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़े, वो एग्जामिनेशन में है, उसको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो ऐसा डिसीजन ले कि चल मैं इस क्वेश्चन में मैं आधा ही लिख देता हूँ, छोटा लिख देता हूँ। ये इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब एक ट्यूशन में नहीं आता। ये सब चीजें स्कूल में आनी चाहिए, लेकिन स्कूल में नहीं आ रहा है। एंड दैट इज व्हाई आई थॉट कि लेट मी मेक दिस ट्यूशन और दिस कोचिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। A child will cover all his academic syllabus. Along with this, he will become independent, he'll get organized, and he will work with assessments, on daily assessments, on regular assessments. In this field, in this, what am I going to do? मेरा क्या प्लान है इसमें करने का? It's very simple. Let's say आपके बच्चे का एक टर्म है 24-25 का, 2024-25 का एक टर्म है। What I'm going to do, very organized way, I will take down the entire syllabus. I will take down the entire syllabus for whole year. I will also see कि बच्चों का एग्जामिनेशन एंड वीकली टेस्ट, जो भी टाइप के टेस्ट हो रहे हैं, वो कब कब शेड्यूल है, या मैं पूछता रहूंगा बच्चों से या उनके टीचर से या उनके पेरेंट्स कि ये मुझे इनका शेड्यूल चाहिए। एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जितने भी सिलेबस है, जितने भी चैप्टर्स हैं, आई विल कवर ऑल द चैप्टर्स कंप्लीटली। एक एक चैप्टर पूरा कवर होगा। ये नहीं होगा कि दर्श मेरे पास आ रहा है, दर्श को पढ़ाई करनी है, तो मैं सिर्फ दर्श को मैंने बता दिया बेटा ये तुम्हारा होमवर्क है, ये होमवर्क ये कर लो, नहीं। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, क्लास 2, 3, 4, another group 5, 6, another group 7, 8, another group 9, 10. There will be 4 to 5 groups जो मैं बनाऊंगा, so that सेम एज के बच्चे आ जाए, सेम सिमिलर क्लास के बच्चे आ जाए।
मैं वो कभी नहीं करूंगा कि क्लास 2 से लेके 10 तक का एक बच्चों एक हॉल में बैठा दिया और एक पढ़ाई नहीं. I will cover all the important chapters, all the chapters of all the school, all the CBSE, ICSE जो भी है. And after covering each chapter for math, science, English जो भी subjects हैं आपके, what we are going to do, I am going to take them on this platform. मैंने काफी पैसे लगाए इस प्लेटफॉर्म पे, मैं आपको दिखा रहा हूं. ये मैंने कम्युनिकेशन के लिए प्लेटफॉर्म लिया है. ये मैंने कम्युनिकेशन के लिए प्लेटफॉर्म लिया, कम्युनिकेशन क्लासेस के लिए. आई सब्सक्राइब दिस प्लेटफॉर्म, ऑफ कोर्स आई पे फॉर इट. ये अब मेरे सारे बच्चे कम्युनिकेशन के सारे असाइनमेंट, सारे प्रैक्टिसेस, सारे वोकैबुलरी सब यहीं पे करेंगे अभी. I will guide them and they will do everything over here. They will learn a lot of things over here. Spelling, vocabulary, सब कुछ यहाँ पे करेंगे अभी इस प्लेटफॉर्म पे. Okay, so this is one thing. This is for the communication skill, and this is also for the students who are coming for free. Don't worry, मैं सबको एक अलग-अलग login ID दूंगा और मैं पेरेंट्स से पैसे नहीं मांग रहा. Another thing which I have taken for the academic जो मैंने लिया है, ये प्लेटफॉर्म तो मैंने सब्सक्राइब किया है फॉर एंटायर ईयर. एंड यहाँ पे all the students, they will be practicing on all the subjects. बहुत सारे मैथ्स के बहुत सारे इसमें अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस है, अच्छे अच्छे टेस्ट है फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, सबके इसमें टेस्ट है. तो ये पूरा प्लेटफॉर्म मैंने 1 साल के लिए लिया है. इसमें स्टडी मटेरियल भी है, इसमें एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी है, इसमें फाइनल एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी है, सारे क्लासेस भी हैं, फिर इसमें सारे पीडीएफ भी है. सो इसमें सारे रिपोर्ट्स आते हैं कि किस बच्चे ने कितना लॉगिन किया, किस बच्चे ने कितने चैप्टर्स किए, किस बच्चे ने कितने सम्स किए, कितने राइट आए, कितने रॉन्ग आए. सारा रिपोर्ट इससे निकल के इमीडिएटली आता है. And each child will get a separate login ID and password. सबको अलग अलग मिलेगा. And वो रिपोर्ट आपके पास भी जाएगा, वो रिपोर्ट मेरे पास भी आएगा, और हम उसको एक मीन्स अब क्या हो गया ना, now we are guiding the child. इस पे क्या टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ उसे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा. What is happening now? We are putting 2-3 forces. Force 1, आपका स्कूल है, स्कूल में जो भी पढ़ाई किया ठीक है. फोर्स 2 और सोर्स 2 इज एबीएससी, लेट्स से मैं या जो भी आपका ट्यूशन है, जो भी. फोर्स 3 इज दिस प्लेटफॉर्म. सो नाउ अ चाइल्ड इज गोइंग थ्रू 3 लेवल्स. लेवल 1, ये यहां पे सिर्फ 20% एब्सॉर्ब कर पा रहा है, 80% वो सीख नहीं पा रहा है, जब मिस कर रहा है, जो भी रिवीजन नहीं हो रहा. ही विल कम टू मी एंड जो भी यहाँ पे मिस हुआ है, अगर आई एम टीचिंग द एंटायर न्यू चैप्टर, उसके स्कूल से पहले ये चैप्टर पढ़ाई होगी. अगर उसके स्कूल में लेट्स से मई में पढ़ाई होने वाली है चैप्टर, मैं उसको अप्रैल तक कंप्लीट करवा दूंगा. व्हाई? सो दैट मैं अगर इसको अप्रैल में कंप्लीट करा रहा हूं, जब ये मई में स्कूल में पढ़ाई होगी, ये जो अभी 20% एब्सॉर्ब कर रहा है, इसका एब्सॉर्प्शन पावर विल मे बी इट विल मूव अप टू 60% to 70%. ये एब्सॉर्प्शन पावर उसका बढ़ जाएगा अगर मैंने इसको पहले यहाँ पे करवा दिया तो जब ये सेकंड सोर्स पे आएगा, ये यहाँ पे स्कूल से पहले कर रहा है काम, यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहा है, ये स्कूल के बाद भी कर रहा है, स्कूल के पहले भी कर रहा है. सो दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर द एंटायर ईयर. जो भी टेस्ट के पहले प्रैक्टिस होंगे इस पे हो जाएंगे, सारे एग्जाम के पहले जो भी प्रैक्टिस होंगे इस प्लेटफॉर्म पे होंगे. सारे रिपोर्ट्स ऑटोमेटेड है, इसमें आपके पास सब रिपोर्ट्स पहुंचेंगे, मेरे पास रिपोर्ट्स पहुंचेंगे, बच्चे का एक एक फीडबैक होगा. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं इसमें करने जा रहा हूं, व्हेन आई से मेजरमेंट, बच्चे का जो मेजरमेंट होगा कि क्या बच्चा पढ़ रहा है, किसने कितना सम किया, कितना सम नहीं किया, कितने इसके सम सही हुए, कितने गलत हुए. मैं पेरेंट्स के साथ एवरी मंथ, लेट्स से मैं भी नहीं आपको कमिट कर सकता, मे बी एवरी क्वार्टर, मैं आपके साथ एक मेरी मीटिंग होगी. द वे स्कूल, जैसे स्कूल करती है आपके साथ एक पीटीएम, मेरी एक आपके साथ मीटिंग होगी, वो सारे रिपोर्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा.
बच्चों के सामने शेयर होगी कि कहां पे बच्चा कर रहा है और कहां पे हमें और कुछ फोर्सेस डालने हैं और कुछ एडिशनल उसको कोर्स करना है, कुछ एडिशनल सपोर्ट चाहिए बच्चा को, नहीं चाहिए, या बच्चा का टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, बच्चे का टाइम मैनेजमेंट कैसे मैं चेंज करवा सकते हैं थोड़ा सा, कि इसकी प्रायोरिटी यहां पे हो जाए, थोड़ी सी प्रायोरिटी कम कर दो उसके हॉबी पे 3 महीने के लिए। तो मे बी अगर मान लो एक बच्चा मैथ्स में इसका स्कोर इतना अच्छा नहीं आ रहा, तो मेरा सजेशन रहेगा कि मैम आप एक काम करो, उसका जो स्पोर्ट्स टाइम है ना 3 महीने के लिए उसको हाफ एन आवर कर दो, ठीक है, और ये हाफ एन आवर थोड़ा सा मैथ्स में उसको प्रायोरिटाइज कर दो 3 महीने के लिए। जैसे ये पिकअप हो जाए ये वापस वहां पे जा सकता है। सो ये जो प्रायोरिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। Another thing that I want to discuss is the relevance of the subjects. Relevance of the subject. हम कहते हैं ठीक है, स्कूल भी कहती है, सीबीएसई भी कहती है, एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स में ओवरऑल चाहे मान लो 80% स्कोर चाहिए, चाहे 90% चाहिए, जो भी है। लेकिन कोई भी पॉलिसी, कोई भी एजुकेशन पॉलिसी ये नहीं कहती है कि मुझे ज्योग्राफी में भी 80% चाहिए, मुझे मैथ्स में भी 80% चाहिए, और साइंस में भी 90% चाहिए। ऐसा कहीं वो कोई मैंडेटरी नहीं होता। व्हाट वी नीड टू क्रिएट दिस कल्चर, हमें बच्चों में थोड़ा धीरे धीरे ये करना है कि मेरे बच्चे का करियर प्लान क्या है भाई, मेरे बच्चे का करियर प्लान क्या है, मुझे आगे 8 साल 10 साल के बाद मुझे इस बच्चे के लिए क्या सोचा है, वो पैशनेट मुझे इसको बनाना है अभी से। Does he require a lot of focus on maths? Yes. Does he require a lot of focus on science? Yes. इसके करियर के अकॉर्डिंग क्या उसको ज्योग्राफी पे बहुत चाहिए? नहीं, नॉट नेसेसरली। क्या सोशल स्टडीज पे बहुत सारा फोकस चाहिए? नॉट नेसेसरी। हिंदी पे फोकस चाहिए? नॉट नेसेसरी। तो आज से जब मैं पढ़ाई करूंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा, आई विल इंश्योर कि आपके बच्चे के करियर प्लान के हिसाब से जो मुझे काउंसलिंग में मिलेगा, मैं उसको मेरा ज्यादा वेटेज उसका इस पे होगा, फिर वेटेज मेरा इस पे होगा, थर्ड वेटेज या फोर्थ वेटेज मेरा इस पे होगा। इट मींस व्हाट आई एम सेइंग कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे साइंस पे आउट ऑफ 100 मुझे इसको यहाँ पे 70% वेटेज, 70% टाइम, ध्यान मुझे इसके साइंस पे देना है, मे बी, और लेट्स से 50% यहाँ पे देना है, 30% मुझे मैथ्स में देना है, 10% मुझे सोशल स्टडीज पे देना है, जो भी सब्जेक्ट, और बाकी 10% मुझे और सब सब्जेक्ट्स में देना है। तो आप ये मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि सर आपको आपने हिंदी तो बहुत कम पढ़ाया है। नहीं, क्या हिंदी आपके इसके रेलेवेंस है? ये हिंदी में 90% लाकर अगर मैथ्स में कम हो गया, उससे इसको क्या बेनिफिट होने वाला आगे? अगर वो ज्योग्राफी में बहुत अच्छा है, ज्योग्राफी में मान लो एक बच्चा बहुत अच्छा है एंड ही इज गेटिंग 90%, लेकिन उसका करियर प्लान में ज्योग्राफी है ही नहीं ना, उसका करियर प्लान में ज्योग्राफी है ही नहीं। तो जब उसका करियर प्लान में ज्योग्राफी है ही नहीं, वो बच्चा अपने आप 90% ला ही रहा है, तो मेरा पूरा टाइम तो जाना चाहिए उसके मैथ्स और साइंस पे, इंग्लिश पे। ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो प्रायोरिटाइजेशन है, ये कौन करेगा? ये आपके टीचर्स को, स्कूल के टीचर्स को करने चाहिए, वो नहीं करते, ट्यूशन वाले तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये जो करियर प्लानिंग है, ये जो प्रायोरिटाइजेशन है बच्चों के सब्जेक्ट्स का, बच्चों का वेटेज देने का, वो कौन करेगा? अभी से हमें करना जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई आई एम कमिंग अप विद समथिंग डिफरेंट, जो मैंने किया है लाइफ में, जो मैं मेरे मन में होता है, अपने बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए किया है मैंने, वो सब चीजें मैं सारे बच्चों को देना चाहता हूँ। यू मे बी थिंकिंग कि अगर इतना करने के लिए बहुत पैसे लगेंगे, नहीं, मैं आज भी कह रहा हूं, आप जो भी अपना ट्यूशन फी जहां पे भी दे रहे हो, आपको देते रहना, आप देते रहो, मुझे उससे कुछ नहीं है। लेकिन अगर बच्चे को मेरे पास आना है, आप वही ट्यूशन फी मुझे दो, लेकिन मैं आपको ये सब दूंगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ऐसा बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में दूंगा, बहुत सिस्टमैटिक वे में दूंगा मैं। तो ये पूरा जो ट्यूशन प्लान है, ये, और मैंने एक ब्रोशर भी बनाया था और मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, और फिर से मैं एक बार शेयर करूंगा क्योंकि आपने नहीं देखा होगा।
तो इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग मैथ, साइंस, इंग्लिश, सिलेबस सब कुछ कॉन्सेप्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं इस चीजों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि मतलब जहां मर्जी जैसे तैसे पढ़ा दिया, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाना है उसको। इसके साथ साथ इंटीग्रेशन और कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा मैथ्स का प्रॉब्लम, अभी मैंने विंटर कैंप में देखा, एक बच्चा मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा है बिकॉज उसका कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम है। वो उसको बिकॉज वो रीडिंग भी ठीक से नहीं कर पा रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो एक मैथ्स के प्रॉब्लम को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से नहीं समझ पा रहा है। अब जब तक एक बच्चा प्रॉफिट एंड लॉस को एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से नहीं समझेगा कि बैंक जाना होता है, बैंक में कैसे पैसे दिए जाते हैं, मैं कितना उसमें इंटरेस्ट आता है, कितना सिंपल इंटरेस्ट आता है, कितना कंपाउंड, जब उस बच्चे को मालूम ही नहीं है तो बच्चा एक मैथ्स की प्रॉब्लम को क्या समझेगा, क्लास 5-6 में नहीं समझेगा वो। तो मुझे उस बच्चे को बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझाना है कि बैंक जब लोन देती है तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एक अमाउंट क्या होता है। वो बच्चों को, अब मैथ्स आप उसको इंग्लिश जितना पढ़ा दो आप उसको समझ में नहीं आएगा बिकॉज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को है ही नहीं। प्रॉफिट और लॉस बच्चे मैंने देखा विंटर कैंप में, बच्चे काफी कंफ्यूज थे उस एक सिंपल से सम को वो नहीं समझ पा रहे। इसलिए नहीं समझ पा रहे कि वो इतना ज्यादा शॉपिंग नहीं करते, वो पैसे देते नहीं है, पैसे लेते नहीं है हाथ से, हम दुकान पे भेजते भी नहीं है, व्हाटएवर इट इज। तो वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आ रहा है, तो बच्चा क्लास 7-8 में वो मैथ्स को 6 में नहीं कर पा रहा है उस चीज को। तो मुझे इन बच्चों को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बहुत समझाना है कि ये सब सम इजी वे में कैसे सॉल्व हो जाते हैं। मैंने काफी बच्चों को विंटर कैंप में समझाया, बहुत इजी वे में समझाया मैंने। आई ट्राइड, मैं नहीं जानता हूँ कितना समझे कम पीरियड में, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया उस चीज को। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये जब तक बच्चे का एक थॉट प्रोसेस सेल्फ डिपेंडेंट एक थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप होगा, अचानक 4 मिनट के लिए बच्चा बात नहीं कर पाएगा, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहा हूं। अगर वो बात नहीं कर पाएगा 4 मिनट के लिए अपने आप, बिना सोचे, बिना टॉपिक दिए, तो उसके मतलब उसका जो थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस इज मिसिंग समवेयर। ही इज नॉट थिंकिंग, ही जस्ट इनसाइड द बुक में घुसा हुआ है। वो नहीं सोच पा रहे कि दुनिया में और क्या चल रही है, उसको नहीं मालूम मुझे करियर में क्या करना है क्योंकि बताया नहीं दस। सो द थॉट प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको 1 घंटा खेलना है, आपको 1 घंटा दिया गया, वो टाइम मैनेज करो आप। एक्सक्यूजेस, मैं काफी बच्चों से बात कर रहा था, मैं जब भी बच्चों से बोलता हूँ बेटा ये करके लाना है, बाबू ये करके लाना है, सर व्हाट आई हियर, मुझे इससे मैं हमेशा सुनाई देता है नो। नो इन द सेंस कि सर मैं तो कभी किया ही नहीं, सर ये तो होगा ही नहीं, मैं सर मैं कहां से लाऊंगा, मैं कैसे करूं। ये नो का कॉन्सेप्ट हटाओ, हटाओ नो का कॉन्सेप्ट। एवरीथिंग हैज अ सॉल्यूशन, आस्क योर चाइल्ड टू फाइंड अ सॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम इससे ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कहां से आता है, हम पेरेंट्स से आते हैं। हम इतना ज्यादा बोलते हैं सर ये प्रॉब्लम मैं कैसे करूं, ये प्रॉब्लम मैं कैसे करूं, मेरा बेटा कम्युनिकेशन में नहीं आएगा क्योंकि उसका कल एग्जामिनेशन है, मेरा बेटा कल कम्युनिकेशन क्लास में नहीं आएगा उसका टेस्ट है। अरे यार टेस्ट है तो आपने पूरे उसमें क्यों नहीं पढ़ाया। ये मेरे एक कम्युनिकेशन क्लास में नहीं आने से क्या इसके एग्जामिनेशन में 50% बढ़ जाएंगे, 50% स्कोर्स का ज्यादा आ जाएगा, नहीं आएगा। एक घंटे का क्लास में नहीं आने से क्या उसके टेस्ट में 90% आ जाएंगे, नहीं आएगा। सो ये सब एक्सक्यूजेस हमने अपने बच्चों को सिखाया है, हम सब उसके इंक्लूडिंग माय किड्स, ये सब एक्सक्यूजेस है। जहां पे नो बोल दिया बच्चे ने, या हम पेरेंट्स हमने जहां पे नो बोल दिया, इसका मतलब हम एक्सक्यूज दे रहे हैं। ये माइंडसेट है, हमने माइंडसेट क्रिएट किया हुआ है बच्चों में, या हम अपने आप में, बच्चों में छोड़ो, हम अपने आप में हमने माइंडसेट क्रिएट किया हुआ है। जहां पे कुछ आया, नहीं यार नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, किसी को हेल्प करना है मैं क्यों करूं। अरे आपकी सोसाइटी में लोग हैं, आपकी कम्युनिटी में लोग हैं, आप जानो चाहे ना जानो, आप हेल्प कर सकते हो, करो। उसमें नो करने की क्या जरूरत है। आपके पास एक प्रॉब्लम आ रहा है, आप सोल्यूशन ढूंढो ना। मेरे बच्चे कैसे सोल्यूशन ढूंढेंगे अपने आप। तो हमें बच्चों को, मैं बच्चों को सिखाना चाहता हूँ बेटा नो, नो कुछ होता ही नहीं है डिक्शनरी में, सोल्यूशन निकालो। और हमारे कॉर्पोरेट में, आप हम सब कॉर्पोरेट में काम करते हैं, हमारे कॉर्पोरेट में कहा जाता है बेग, बोरो, स्टील। आपको कॉर्पोरेट ऑफिस में आपको एक प्रॉब्लम दिया गया, उसको सॉल्व करना है, आप कैसे करोगे, आपका हेडेक है। भीख मांगो,
उधार मांगो, चोरी करके लाओ, लेकिन मुझे वो सोल्यूशन चाहिए। तो हम बच्चों को उस एटीट्यूड में अभी तक नहीं ला पाए। मैंने अभी 4 दिन पहले किसी से बोला अपने मुझे क्लास 9 का सिलेबस चाहिए। सर मेरे पास तो है ही नहीं। अरे तुम्हारे पास नहीं है, मुझे मालूम है, तुम क्लास 8 में हो, तुम्हारे पास कहां से आएगा सॉल्यूशन? नहीं है तुम्हारे पास, मुझे मालूम है। आप ढूंढो, अपने सीनियर से बात करो, जो यहाँ पे आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 के, उनसे बात करो, अपने टीचर से बात करो और मुझे लाके दो। लाके दिया उसने। नेक्स्ट सेकेंड डे पे उसने मुझे भेजा सब कुछ। तो बोलता अच्छा बेटा नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। अगर सब कुछ मैं ही कर लूं तो मेरा बच्चा क्या करेगा फिर? अगर मैं सब कुछ मैं ही कर लूं तो मेरे एम्प्लॉइज नीचे वाले क्या करेंगे? हम क्या कहते हैं, अच्छा बेटा नहीं चलो मैं कर लूंगा, अच्छा बेटा ये नहीं होगा चलो मैं कर लूंगा, अच्छा बेटा वहां, अच्छा आप मेट्रो से अकेले नहीं जा सकते, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं यार, सोल्यूशन ढूंढने दो बच्चे को। ऐसा लाइफ में कभी हुआ ही नहीं कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ये प्रॉब्लम बन के ही आया लाइफ में, ये प्रॉब्लम लाइफ में आया तो उसका सोल्यूशन भी लाइफ में ही है। लेट देम ट्राई तो कर लेते हैं हम। सो व्हेन आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्यों बोल रहा हूँ, हम एक मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, साइंस का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इंग्लिश का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेट देम डू इट। उनको ट्राई करने दो। मैं भी बच्चों को भी कम्युनिकेशन में विंटर कैंप में मैंने सब बच्चों को बोला गूगल में घुसो, मुझे आंसर दो, मुझे एक्सप्लेन करो, आप एक्सप्लेन करो, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, मुझे एक सोल्यूशन निकाल के दो, इंडिपेंडेंट बनो आप। तो ये सब धीरे 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 एक कल्चर बनता है, और ये सब चीजें मैं एक बच्चों में, इन बच्चों में डालने जा रहा हूं। ये ओवरनाइट नहीं होगा, 15-20 दिन में नहीं हो जाएगा, 2 महीने में नहीं होगा, लेकिन ये मेरा एश्योरेंस है, बच्चा रेगुलर मेरे साथ रहा तो विद इन 4 to 5 months वो बच्चा ट्यूशन के नाम से भागेगा। ट्यूशन नहीं चाहिए उसको, ही विल बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। उसको अनूप सर भी नहीं चाहिए, अनूप सर भी 6-5 महीने के बाद नहीं चाहिए, वो बच्चा खुद करेगा। ये एश्योरेंस, ये गारंटी मैं ले रहा हूं कि 4 से 5 महीने बाद वो बच्चा, आपका बच्चा खुद पढ़ाई करेगा और ये सारे सोल्यूशन लाके देगा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग आएगी बच्चे में। एंड दैट इज माय ऑब्जेक्टिव, वही मेरा टारगेट है जिसको मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं फुलफिल करूंगा, और मैं करूंगा। नाउ ब्रोशर मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप ब्रोशर देख सकते हो, और बीच में कुछ चैलेंजेस आएंगे, जिनका भी इंटरेस्ट है यू कैन ट्राई फ्रॉम February, यू कैन ट्राई फ्रॉम April, जब भी आपकी इच्छा हो यू कैन एनरोल। एंड मैंने बहुत ही कम फी रखा हुआ है, जैसे मैंने बोला कि ये ट्यूशन वाली फी है, लेकिन मैं टाइमिंग काफी इंक्रीज कर दिया है। और मेरे साथ ना थोड़ा ये है कि आप मुझे ये मत बोलो कि सर बच्चा 5 दिन पढ़ाओ, 6 दिन पढ़ाओ, बच्चा आपको मतलब है रिजल्ट से। आप बोलो सर मुझे रिजल्ट चाहिए, आप 4 दिन पढ़ाओ, 2 दिन पढ़ाओ, 1 दिन पढ़ाओ, ना पढ़ाओ, 20 दिन पढ़ाओ, 1 महीना पढ़ाओ, 24/7 पढ़ाओ, वो मेरे ऊपर छोड़ो। आपको मतलब होना चाहिए कि आपके बच्चे में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मुझे ये बोल के 5 दिन सर कर दो सर, ये 6 दिन बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कितने दिन पढ़ा रहा हूँ। मैं बच्चों के साथ काफी कनेक्टेड रहता हूँ। मुझे 12 बजे रात में भी कोई एक अपना होमवर्क भेजता है कम्युनिकेशन क्लास में, मैं उसी में फीडबैक भी देता हूँ। ठीक है, तो फीडबैक होना, ये 24/7 कनेक्शन मेरा है। सो प्लीज रीड दिस ब्रोशर। आपको जो भी क्वेश्चन होंगे कभी भी होंगे, यू ऑलवेज वेलकम। एंड नाउ आई एम गिविंग यू टाइम फॉर सम क्वेश्चनर्स। अब आप मुझसे कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो। मैंने तो काफी देर बोल लिया, मैंने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स जो मेरे मन में है, जो थॉट प्रोसेस में है, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें सारे एफएक्यूज भी हैं। ये ब्रोशर मैंने 14 पेज का ब्रोशर काफी सोच समझ के बनाया है। ऑनलाइन एक चीज और समझाना चाहूंगा कि बहुत सारे पेरेंट्स के मन में है कि सर ऑफलाइन ऑफलाइन, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। आपका सोचना बहुत अच्छा है, ऑफलाइन। हमें लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस बहुत अच्छे होते हैं लेकिन ऑनलाइन ठीक नहीं होता। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। मैंने जो प्लान किया है, ऑफलाइन में मेरे लिए काफी लिमिटेशन हो जाता है, आपके लिए लिमिटेशन नहीं होगा। अगर एक ऑफलाइन आप होमवर्क एक ट्यूशन आप कहीं पे भेजते हो, आप चाहते हो कि मेरा बच्चा अगल बगल में ही चले जाए, मे बी 200 मीटर के अंदर ही जाके पढ़ ले, लेकिन आप रियलाइज नहीं करते हो कि 200 मीटर के अंदर आपको वो टीचर नहीं मिलते हैं
जिससे आपको पढ़ाना है, आपको नहीं मिलेंगे। आपकी फिर एक मजबूरी हो जाती है कि जो मिल जाए, एटीएस में मिल जाए, मागुन में मिल जाए, मात्रा में मिल जाए, जो मिल जाए वही सही। और वही सही पे क्या हो गया, हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और ये एक शॉर्ट टर्म नहीं, हमने लॉन्ग टर्म कॉम्प्रोमाइज किया अपने बच्चों के चलते, बच्चों की। हमें अपने बच्चों के लिए पार्टी में अगर जाना हो, हम पार्टी में चले जाते हैं 20 किलोमीटर, लेकिन अगर हमें पढ़ाना हो तो हम ढूंढते हैं कि भैया 200 मीटर के अंदर ही कोई टीचर मिल जाए, ठीक है, जैसा भी पढ़ा दे, हो गया। फिर वो क्या होता है, 3 महीना यहाँ पढ़ा, अरे ठीक नहीं है यार, अच्छा चलो दूसरे जगह। फिर 3 महीना यहाँ पढ़ा दिया, अच्छा ये भी मजा नहीं आ रहा। 1 महीना यहाँ पढ़ा दिया, ये भी मजा नहीं आ रहा। कहाँ से मजा आएगा आपको? तो आपने पहला प्रायोरिटी लाइफ में 200 मीटर देखा है ना, आपने क्वालिटी ऑफ टीचर आपके पहली प्रायोरिटी थी नहीं, या आपके क्वालिटी ऑफ टीचर पहली प्रायोरिटी थी नहीं। तो जब आप पहला प्रायोरिटी ये लोगे 200 मीटर या 300 मीटर, तो आपको ये चैलेंजेस आएंगे। आप यहाँ भी पैसे खर्च कर रहे हो, यहाँ भी आपने खर्च किया, यहाँ पे आपने खर्च किया, 7 महीने बाद आपने देखा कि रिजल्ट तो यार जीरो ही रहा, मजा नहीं आया बच्चे में, कुछ दिखा नहीं, इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। तो ऑनलाइन में ये क्या फायदा है कि मैं टीचर अच्छे अच्छे हायर कर सकता हूं, भले ही वो बैंगलोर में बैठा हो, भले ही वो अमेरिका में बैठा हो, मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं उसको ऑनलाइन लाऊं। सेकेंड बेनिफिट मैं ये दे रहा हूं कि 100% रिकॉर्डिंग है मेरे पास, 100% रिकॉर्डिंग है। अभी मैंने प्लान किया क्या है, 1 फरवरी से मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लस ऑफलाइन मैं दोनों करूंगा। ऑफलाइन भी रिकॉर्ड होगा और ये दोनों रिकॉर्डिंग होगी, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों रिकॉर्ड होंगे, 100% रिकॉर्डिंग होगी। क्योंकि अगर मैं ऑफलाइन रिकॉर्ड नहीं करता हूं तो मैं वही गलती कर रहा हूं जो स्कूल गलती कर रही है, वो मैं गलती नहीं करना चाहता। ये ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा फॉर टाइम बीइंग, बिकॉज मैं इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूं विदाउट सीइंग द मार्केट। जब तक मेरे पास बच्चे नहीं आएंगे, जब तक पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं आएगा, मैं ऑफलाइन में अभी अपने घर से कर रहा हूं विद लॉट ऑफ क्लासरूम अरेंजमेंट, चेयर वेयर, स्मार्ट बोर्ड जिसपे मैं पढ़ा रहा हूं, रिकॉर्डिंग, मेरे पास पूरा स्टूडियो सेटअप है और काफी अच्छे अच्छे कैमरे मेरे पास। ये सारा होम सेटअप में मैं इनिशियल मे बी जब मेरा रिस्पॉन्स अच्छा होगा, मेरे पढ़ाने का ढंग लोग पेरेंट्स को पसंद आएगा, जब एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा, मे बी फ्रॉम अप्रैल मैं आसपास में कहीं पे 2-3 क्लासरूम खोलूंगा। लेकिन ये अप्रैल में से प्लान है, डिपेंडिंग कि अभी क्या हो रहा है। अभी मैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन अपने कर रहा हूँ। ऑनलाइन में मेरे पास काफी मैं टीचर्स हायर करने वाला हूँ दूसरे दूसरे प्लेसेस से, बिकॉज फॉर ऑल द ग्रुप्स मैं एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। तो अब मैं जब टीचर हायर करूंगा तो काफी एक्सपीरियंस्ड और काफी क्वालिफाइड टीचर्स होंगे जो मेरे थॉट प्रोसेस के साथ काम करेंगे उस पर। सो ये ऑनलाइन ऑफलाइन का ये है। दूसरा ऑनलाइन में फायदा क्या कि मेरा जब ऑफलाइन क्लास चल रहा होगा साथ में वही क्लास ऑनलाइन भी चल रहा होगा। सो दैट लेट्स से आज बहुत विंटर हो गया, वो ठंड हो गई, बच्चा नहीं जा पा रहा है, कोई बात नहीं, उस दिन बच्चा नहीं जा पा रहा है, आप ऑनलाइन आ जाओ। बहुत गर्मी हो रही है, धूप कड़ाके की हो रही है, नहीं जा पाएंगे, कोई बात नहीं, आप घर पे नहीं आ सकते हो, चाहे क्लासरूम में नहीं जा सकते हो, आप ऑनलाइन आ जाओ। आपकी क्लासेस मिस नहीं होने चाहिए, आपकी जो कोचिंग है उसमें एब्सेंस नहीं होना चाहिए। ये एक ऑब्जेक्टिव है मेरा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक साथ करने की। कि किसी भी रीजन से, किसी भी बहाने से आपने ट्रैवल कर लिया कहीं, आप बाहर हो, तो आपका जो कोचिंग है वो मिस नहीं होना चाहिए। आप ऑफलाइन में होके उसी समय ऑनलाइन आ जाओ, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहा है। तो ये सारे जितने भी सारे प्रॉब्लम्स मैंने देखे हैं अपने बच्चों के प्रति, चाहे स्कूल के साथ जो भी है, ये सारे प्रॉब्लम्स को मैंने स्टडी किया है, प्लस एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से भी देखा है मैंने प्रॉब्लम्स को, सारे प्रॉब्लम्स को स्टडी किया। इन सारे प्रॉब्लम्स, एक एक प्रॉब्लम का मैं आपके पास सोल्यूशन लेकर आया हूं, एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लेके आया हूं। एंड आई ट्राई कि हर सोल्यूशन को मैं और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करूं। बेस्ट पार्ट मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा 20 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। इस 20 साल जो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, मैंने काफी सीनियर पोजीशन पे काम किया है। आई हैव वर्कड अप टू द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लेवल। My last assignment was in Africa for 9 years, where I was handling big clients and
I was working very closely with the CEO of the company. So I've handled very high positions and in different corporates. So ये सारे experience जो मेरे आ रहे हैं, plus मैंने बैंकिंग में काम किया है, सप्लाई चेन, एजुकेशन, ये सारे एक्सपीरियंस को मैं अपने इन सब बच्चों पे इन अ सॉल्यूशनिंग मोड में देना चाहता हूं। ये सारे जो मेरे लर्निंग है, सारे एक्सपीरियंस है, इन सब को मैं ट्रांजिशन करना चाह रहा हूं अपने बच्चों में, ताकि मेरे बच्चे अभी से ही अपने आप को एक अच्छे कॉर्पोरेट लीडर देखना सीख जाए, अपने आप को एक अच्छे करियर में जान जाए कि मुझे क्या सही डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन सही नहीं है। ये सारे ट्रांजिशन एंड माइग्रेशन इन बच्चों के साथ, ये प्रोसेस के साथ होगा, एंड दैट इज माय ऑब्जेक्टिव, दैट इज माय गोल। नाउ प्लीज आस्क क्वेश्चंस। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? खुल के पूछो, कोई बात नहीं, किसी के पास जो भी क्वेश्चन है आप पूछो। एनीवन? वनिता, सीमा? यस सर। क्वेश्चन है तो कोई पूछो, मन में कोई डाउट है, कुछ है? हाँ, मेरा मन में डाउट ये है सर कि ये इसको ना इंग्लिश में, अब आपने देखा ही होगा यस और नो में खत्म कर देता है ये क्वेश्चन ज्यादातर। लेकिन आपने ये भी तो देखा कि पहले बिल्कुल नहीं बोल रहा था, बोलना शुरू कर दिया नीलू ने, राइट? हाँ, पहले से तो खैर इम्प्रूवमेंट है। तो अब इम्प्रूवमेंट, अब ये भी तो देखो सीमा कि अनिरुद्ध कितने बार आया क्लास में, मैं तो बता, अटेंडेंस है, अनिरुद्ध शायद क्लास में अब जाके वो रेगुलर होना शुरू किया, जब मैंने इतना प्रेशर डाला है आपके ऊपर, अनिरुद्ध के ऊपर, तब जाके अभी इसने शायद 3, 4, 5 क्लासेस लगातार किए हैं, करेक्ट? हाँ, अब तो ये लगातार ही करवा रही हूँ मैं इसको वैसे। तो जब क्लासेस सितंबर से लेकर अभी तक चल रहे थे, अनिरुद्ध अभी 4-5 क्लासेस में आया है रेगुलर, तो थोड़ा मुझे टाइम दो, अभी तो देखा काफी खुल गया लड़का, और खुल जाएगा, चिंता नहीं करो। हाँ, मेरा ये है ना कि ये इंग्लिश में ना सेंटेंस, या तो ये सेंटेंस मेरे ख्याल में बना लेता है, इसको लगता है मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ, मेरे अंदर वो हेजिटेशन मैं निकाल रहा हूँ ना अभी धीरे-धीरे। अभी देखो वो कितना बोलना शुरू कर दिया इस क्लास में, ठीक है? अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब इन सब चीजों में जो मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये किस पे कर रहा हूँ? इन बच्चों के लिए कर रहा हूँ मैं कम्युनिकेशन क्लास फ्री में देता हूँ, फिर भी मैंने काफी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, काफी पैसा मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है इन प्लेटफॉर्म्स पे, तो मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, चिंता नहीं करो, पर टाइम दो, कोई भी चीज ओवरनाइट ठीक नहीं होती। हाँ, बस मेरा तो यही है कि ये थोड़ा इंग्लिश में मतलब सेंटेंस बनाने लग जाए अच्छे से बस। अरे बन जाएगा, कोई सेंटेंस बनाना कौन सी बड़ी बात है। नहीं, ये घर में भी ऐसे करता है, यस और नो करके उसमें ही वही खत्म कर देता है, कुछ भी बोलो तो। कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। प्रीति मिश्रा जी, एनी क्वेश्चन? Yes, sir. Sir, I don't have any question. ओके। मनोरमा जी, आरुष, नीरज? नहीं अनूप जी, डोंट हैव एनी क्वेरी, सब कुछ अंडरस्टैंडेबल था, ऐसा कुछ था नहीं कि जो आप बताएं और हमें समझ में ना आए। ओके, वेरी गुड। दक्ष, राज जी? हाँ जी अनूप जी, सही है जी, सही है। नहीं, सही तो ठीक है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन बता दिया करो। प्रिया जी? नहीं सर, क्वेश्चन तो कोई नहीं है मेरा, पर ये आपका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा मुझे कि जब हम भी छोटे थे तो जो हमारे गुरुजी थे या फिर जो पेरेंट्स थे वो यही बोलते थे कि चैप्टर एक बार पढ़ के जाओ जो कल पढ़ा रहे हैं, फिर टीचर पढ़ाएगा, फिर आके पढ़ो तो वो हमेशा के लिए लर्न हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे आपका ऐसा लगा कि हाँ, मैं अपने उसमें पहुंच चुकी हूँ चाइल्डहुड में, और वो चीजें आपने पकड़ी हैं। तो कई बार ऐसा होता है जो पुरानी चीज है ना, वो अगर हम लेके चलें तो वो चीज कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। वही होना ही है, हाँ, प्रैक्टिकल चीजें प्रैक्टिकली रहेंगे, कभी जिंदगी में कभी चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। मैं जब क्लास 2-3 में जब मैं बोर्डिंग में गया ही था ना, सिर्फ मैं बोर्डिंग मैंने ज्वाइन ही किया था देहरादून में, तो वहां पे सिर्फ इंग्लिश मूवीज दिखाते थे, अपने को समझ में आता नहीं था, पेरेंट्स लोग इतने पढ़े लिखे थे नहीं, बस किसी तरह उनको एक शौक था कि सबसे अच्छा स्कूल में पढ़े तो वो भेज दिया।
और मैं एग्जामिनेशन पास कर लिया इंडिया लेवल पे। अब मैं इंग्लिश मूवी अंदर देखने जाऊं, समझ में ना आया कुछ। तो जब सब लोग हंसते थे तो मैं भी हंस देता था। मतलब ये वही होता है कि सब लोग हंस रहे तो हंस दो। फिर या फिर अब उसके बाद क्या किया मैंने, मैं अपने जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स थे उसी एज में उनसे पूछता था, यार ये मूवी ये तो मूवी मैं देखा था अभी छुट्टियों में। मैं बोला यार छुट्टियों में इंग्लिश मूवी देखते थे, हमें तो पता भी नहीं चलता ये सब चीजें क्या होती है। तो वो मुझे स्टोरी बता देता था। अब स्टोरी बताने के बाद जब मैं उस मूवी को देख रहा था ना तो मुझे समझ में आ जाता था। बिल्कुल, एक बार समझ में नहीं आएगा पर उस चीज को 2 बार 3 बार खुद भी पढ़ेंगे तो वो आता है समझ में। तो ये चीजें बिल्कुल। अगर एक बार आप 3 बार तो आप खुद ही बता रहे हो, और एक बार और कर लेगा तो 4 बार में तो अच्छी अच्छी चीजें समझ में आने लगती है। राणा साहब जय श्री राम। हाँ सर, आपका ये जो मॉडल है बड़ा अच्छा है, मतलब अच्छा है बच्चों के लिए। और वैसे कोई क्वेश्चन नहीं मेरा, बस एक थोड़ा सा डाउट था, मतलब एक मैं कुछ समझना चाह रहा हूँ, इस चीज को समझने की पूछ रहा हूँ आपसे। जैसे कि आपने कहा कि चीजों को प्रायोरिटाइज करो ना, तो जैसे आपने कहा स्पोर्ट्स को कट कर लो, जो आपको प्रायोरिटी करना उस पर थोड़ा फोकस डालो, फिर उसके बाद वापस रिज्यूम कर लो पुराना शेड्यूल जो भी है। तो जैसे आपने एक क्वेरी करी कि बीच में कि कोई बच्चा कोई टेस्ट है उसका, उसने कम्युनिकेशन क्लास या कोई भी क्लास उसने स्किप कर दी, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है क्या? वो मैं समझना चाह रहा हूँ। नहीं, एक बात बताओ राणा साहब, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आपको ऑफिस में एक काम दिया गया है, ठीक है? उस काम के लिए आपको 3 महीना दिया गया था। 3 महीना कुछ सोच समझ के, अगर वो 3 महीना आपके लिए कम था तो आप अपने बॉस को इसमें बोलते हैं कि बॉस ये 3 महीना बहुत कम है, आप उसी से ऑब्जेक्ट करते, करेक्ट? नहीं, वो नहीं, लॉन्ग टर्म का नहीं, शॉर्ट कुछ शॉर्ट टर्म में होता है ना, जैसे कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले कुछ खास ऐसा होता है। आपको मैं एक बुक सजेस्ट करता हूँ राणा साहब, ठीक है? इनफैक्ट सबको सजेस्ट करूंगा। और मैं कुछ राइटर्स का मैं बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। मैं एक बुक है स्टीव कोवे का, इसका 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, 7 हैबिट्स का ये बुक पढ़ो। उसमें एक ये बनाया हुआ है, ठीक है? एक मैट्रिक्स बनाया है, क्वाड्रेंट बनाया है। इसमें ये वाला जो है ना क्वाड्रेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, राइट। अगर आपके पास कोई भी काम ऐसा आ गया कि भाई ये इंपॉर्टेंट भी अर्जेंट है, इसके मतलब बहुत क्लियर है आप अनप्लान्ड हो, आपने अपने लाइफ में प्लानिंग की नहीं है। कोई भी काम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों एक साथ आ गया, इसके मतलब आप कहीं ना कहीं आपने मैसअप किया है चीजों को। कोई भी काम इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन नॉट अर्जेंट हो सकता है। कोई भी काम अर्जेंट हो सकता है, कोई किसी का डेथ हो गया, मुझे जाना ही जाना है, और वो इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। तो अगर किसी का डेथ हो गया, इंपॉर्टेंट भी अर्जेंट है, वो सिर्फ एक काम यहां पे आता है। अगर अर्जेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट है, हमें इस चीज को प्रायोरिटाइज करना है। एंड दैट्स हाउ वी वर्क इन ऑफिसेस, दैट्स हाउ वी वर्क इन ऑफिसेस। जब ये चीजें आ जाती है इंपॉर्टेंट अर्जेंट, हम इसी को कहते हैं यार फसल आ गई लाइफ में, अब क्या करें? हमारे बच्चे उसी बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं। एग्जामिनेशन के लिए एक दिन पहले मिडनाइट ऑयल जलाएंगे, उसके लिए बहाना हो जाएगा मैं फुटबॉल खेलने नहीं जाऊंगा, क्यों? मेरा एग्जाम है। मैं कम्युनिकेशन क्लास में नहीं जाऊंगा, क्यों? मेरा एग्जाम है। भैया मैं खाना टाइम पे नहीं खाऊंगा, क्यों? मेरा एग्जाम है। ये एग्जामिनेशन ही हो गया कि मेरे इसके चलते 5 चीजें और मैं वेस्ट कर रहा हूँ। इसके वजह से मैं 5 चीजों पे इंपैक्ट डाल रहा हूँ। ये एक चीज में पता नहीं मुझे ये 5 चीजों में इंपैक्ट आने से मेरा इसमें स्कोर कितना बढ़ेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये 5 चीजों में इंपैक्ट जरूर आ रहा है। मेरे बच्चे अगर फाइनल एग्जाम के चलते कम्युनिकेशन क्लास में नहीं आ रहे, जितना मैंने पढ़ाया था वो बैक टू जीरो हो जाते हैं, वो बैक टू जीरो आ जाते हैं। जब मैं इनको इरेगुलर लिख देता हूं या मैं डीएक्टिवेट करता हूं, पेरेंट्स को बुरा लग जाता है, पेरेंट्स को बहुत बुरा लग जाता है कि सर आपने डीएक्टिवेट क्यों कर दिया? सर मेरा बच्चा इरेगुलर आ जाएगा। अरे आ जाएगा तो मैं इसको रेगुलर कर दूंगा। मैंने काफी किया, आपका बच्चा जो आ ही नहीं रहा, मेरे लिस्ट में है ही नहीं वो, तो मैं डीएक्टिवेट करूंगा ही करूंगा, या तो आप मुझे कम्युनिकेट करो।
अगर आपने सारी मेरा प्रायोरिटी मेरा क्वेश्चन कम्युनिकेशन क्लास से नहीं था, मतलब किसी भी चीज के लिए था। I'm just giving an example. I'm just giving an example. हम्म, जो मेरे साथ अभी हो रहा है मैं उस चीज पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको राज। कि प्रायोरिटाइज टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है बच्चों में, अभी से ही जरूरी है। राइट। मनोरमा जी एनी क्वेश्चन? दीपा जी एनी क्वेश्चन? यस सर, एक क्वेश्चन है मेरा। मतलब आपने काफी अच्छा हम लोग को एक्सप्लेन किया सारी चीजें कि कौन से सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ बच्चे लाइक नहीं ज्यादा अच्छा फोकस कर पाते, उनको प्रॉब्लम होती है सीखने में, चीजें बहुत लेट सीखते हैं। वो चीजें क्लास में भी होती है जो आपने मेरे को एग्जाम्पल हम सबको बताया कि 80-20 वाला रेशो। तो सर वो चीजें आपकी क्लास में कैसे आप मैनेज करेंगे? मैं बताता जी हूँ। सर। अगर आपने कम्युनिकेशन क्लास में, मैंने कम्युनिकेशन क्लास इसलिए शुरू किया है ताकि आपको एक पता हो गया होगा कि मेरा पैटर्न पढ़ाई का क्या है, मेरा एक अप्रोच क्या होता है पढ़ाई का। आपने अगर देखा होगा, बहुत लोग से पेरेंट्स को नहीं मालूम है, आपके जो सीनियर ग्रुप के बच्चे हैं ना, आपके जो सीनियर ग्रुप के बच्चे हैं उनको पता है मैं भी क्या सिखा रहा हूँ? एस्से राइटिंग। कौन से लेवल पे सिखा रहा हूँ मालूम है? यही एस्से राइटिंग मैं यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को भी सिखा रहा हूँ। मेरा एक ग्रुप है यूपीएससी का, वो सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वो जो यूपीएससी के बच्चे हैं ना, मैं उनको भी यही चीज पढ़ा रहा हूँ, और मैं अपने सीनियर ग्रुप के क्लास 6, 7, 8 के बच्चों को भी यही चीज पढ़ा रहा हूँ। दोनों को मैं यही चीज पढ़ा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उस चीज को ओवरकम करने के लिए नहीं सीख पाते हैं। एक कहावत है, if you want to target the sun, if you want to target the moon, if you have to reach the moon, you have to target the sun. अगर आपको मून पे पहुंचना है, आपका टारगेट सन होना चाहिए, स्ट्रेच टारगेट। अगर हमने लाइफ में सोच लिया कि मुझे 1 लाख रुपया पर मंथ से ही मैं खुश हूं, तो आप वहीं पे रह जाओगे। मुझे ये सोचना बहुत जरूरी है कि मुझे कम से कम 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपीस मुझे पर मंथ चाहिए, तब जाके शायद मैं 1 लाख रुपए बिजनेस में ले आ पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने 1 लाख ही सोचा है तो शायद मैं 75,000 पे ही अटक जाऊंगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैं अपने बच्चों को जब तक एक स्ट्रेच टारगेट ना दूं, जब तक मैं अपने बच्चों को सोचूं कि वो छोटा है, क्लास 5 का है, क्लास 6 का है, नहीं, मैं अपने बच्चों को ये सोचता हूं कि मेरे बच्चे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं। आज से मैंने सोचना शुरू कर दिया है। लास्ट 2 सेशन आप पूछ लो अपने बच्चों से, मैं ये नहीं सोचता हूं कि मेरे बच्चे छोटे हैं। मैं ये जानता हूं ये मेरे बच्चे आगे जाके 8 साल बाद, ये मेरे बच्चे यूएसपी के एस्पिरेंट्स हैं, और इन बच्चों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अविका है यहाँ पे, जितने लोग हैं आप पूछ लो, इन बच्चों ने समझना शुरू कर दिया, इन बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया है। जो मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, ये चीज मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, इनसे भी वो रिस्पॉन्स आ रहा है, इनसे भी वो रिस्पॉन्स। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट अस मूव 2 स्टेप 3 स्टेप्स अहेड ऑफ आवर किड्स। हम सोचना बंद कर दो कि हमारे बच्चे छोटे हैं, क्लास 6 के हैं, क्लास 7 के हैं, इतना ज्यादा क्यों करेंगे, क्या करेंगे। नहीं, बच्चे का माइंड बहुत ज्यादा है, हमसे भी ज्यादा, आपसे भी ज्यादा। हम एक्सपैंड नहीं कर रहे उस चीज को, एक रबड़ की तरह हम उनके माइंड को खींच ही नहीं रहे। जब तक खींचेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। मेरे क्लास 1 के बच्चे जो कम्युनिकेशन क्लास में आ रहे हैं, मैं उनको चाहूं तो मैं सिखा सकता हूँ कैट, हैट, ये सब मैं चीजें सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं इसे नहीं सिखाता। मैं उनको लंबे लंबे वर्ड्स सिखाता हूँ। बच्चे लंबे लंबे वर्ड्स बोलना शुरू कर रहे हैं। सो दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू सर। जो क्लास 6 के बच्चे आएंगे मेरे पास, मैं उनको क्लास 7, 8 के चीजों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। उत्कर्ष, एनी क्वेश्चन? नो सर। एंड नेहा जी, एनी क्वेश्चन? मणिता, सोमवीर, आदि? नो सर। नो सर, नो सर नहीं बोलते सिर्फ बेटा, नो सर थैंक यू। सीधा नो सर बिल्कुल हार्ड साउंड करता है, फ्लैट साउंड करता है। नो सर थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। यस। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा, आप मनीता जी बोल रहे, मुझे लगा आदि आदि बोल रहा है। नहीं सर, मैं बोल रही हूँ। अच्छा, मुझे आदि का आवाज लग रहा है, तभी मैंने बोला आदि को। ओके,
Fine. So, Sanjay, Runa ji, any question? Excuse me, sir. Yes. Sir, my mother has a doubt. बोलो. सर मैं आपके तब से बात सुन रही थी, मुझे अच्छा लगा सुनकर सब कुछ, लेकिन एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बच्चों को मेरे आरुष के लिए खास करके इसको पढ़ाई से ज्यादा आप एक चीज पे ध्यान दें कि ये अपना समय समझे, मुझे किस टाइम क्या करना है और आपका काम पे थोड़ा फोकस करे। तो इस चीज के लिए मैंने क्या बोला, मैंने इस चीज को क्या बताया आपको? देखो, मैंने इतना सोच के जो मैंने बनाया है, काफी सोचने के बाद मैंने इसको लिखा है, और ये मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है, मैंने खुद सोचा है। ये सब टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और टाइम मैनेजमेंट के अंदर वो सब आएगा, इसलिए चिंता नहीं करो, वो सब धीरे धीरे एक रात में नहीं आएगा, तो काफी टाइम लगता है। और आरुष ऐसे भी है काफी सेंसिबल, मैं दूसरे भी आपको बोला था घर पे, काफी सेंसिबल लड़का है और वो कर लेगा। संजय, रूना जी, दीपक। यस सर। Any your mother's there? Any question? नहीं सर। सर क्या हाल चाल? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, दीपक जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। Any question? Any suggestion? सर सजेशन तो एट अ पॉइंट अभी नहीं है, एट अ टाइम नहीं है, बट सुनने में तो बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया, एक्सप्लेन किया है। नहीं, हम सुनने में नहीं, हम इम्प्लीमेंट करने वालों में से है। अभी तो जब होगा इम्प्लीमेंट तब देख लेंगे, अभी तो सुनने में भी अच्छा लगा है, इम्प्लीमेंट भी अच्छा होगा ये एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं, आपका मतलब फिर मैं कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन क्लास जो शुरू किया, उससे आपको काफी आइडिया हो जाएगा कि क्या मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, क्या अप्रोच है, क्या डिसिप्लिन है, क्या मेंटेन होता है। नहीं वो एग्रीड है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीड। शीशा, खुशबू जी, एनी क्वेश्चन? या आशुतोष दिस साइड। आशुतोष जी बोलिए। कोई नहीं, सब सही है, आपका थॉट प्रोसेस भी सही था। आपने जो मेन स्टूडेंट्स के साथ होना चाहिए वो है कंसेप्ट बेस्ड स्टडी, तो उस पे आपने फोकस किया ही है कि वही उसी पैटर्न पे आप पढ़ाओगे। तो स्टूडेंट्स का कंसेप्ट सही रहेगा तो मार्क्स आएगा ही आएगा। मैटर फॉर स्टूडेंट प्लस थॉट प्रोसेस है, तो थॉट प्रोसेस डेवलप करना है बच्चों में, बल्कि रट्टू नहीं बनने चाहिए बच्चे, खुद को कुछ नए चीज मिलना चाहिए, डिफरेंट सिचुएशन मिलना चाहिए, सो दैट दे कैन इंप्रूव देमसेल्व्स। बिल्कुल ठीक है, वो ओवरऑल कांसेप्ट सही था आपका, आई लाइक इट। ओके, यस राज दक्ष। अनूप जी, एक चीज था, थोड़ा सा इनको ना टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा फोकस कराइए। ये मतलब बिल्कुल क्यूरियस हैं ये बच्चे हैं, मैं ज्यादातर बच्चे मैं कह रहा हूँ। वो राजी, टाइम मैनेजमेंट ये अपने आप में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट कैसा है मैं बताता हूँ। मैं बोलूंगा बच्चों को टाइम पे उससे नहीं होगा। मैं बच्चों को जब टेस्ट दे रहा हूँ ना कि टाइम टेस्ट आपको 1 सेकंड में करना है, 3 सेकंड में करना है, 50 सेकंड में खत्म करना है, वो धीरे धीरे उसके मन में आना शुरू हो जाएगा ना, टाइम, वो अपने आप धीरे एक प्रैक्टिस में आ जाएगा, कल्चर बन जाएगा वो। तो वो एक जो होता है कि हमारे एक पोस्ट लर्निंग, तो इनके साथ एक पोस्ट लर्निंग शुरू करना जरूरी है। आपको टाइम दिया, या मैं विंटर कैंप में भी करवा रहा था कि चलो 30 सेकंड में ये सम करके दिखाओ, 60 सेकंड में ये आंसर दो मुझे। तो ये पोस्ट लर्निंग बिगिनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फोर्सफुली आप उनको सिखाओ, और धीरे वो हैबिट बन जाता है, हैबिट फिर एक कल्चर बन जाता है। Okay, so no more question I believe, and I'm starting this from 1st of February. जिसको भी इंटरेस्ट है फरवरी से ज्वाइन करना, फरवरी ज्वाइन कर सकते हो, मार्च से ज्वाइन करना, मार्च से कर सकते हो, but I'm starting the first batch from first week of February. Please drop me a message for with the confirmation, so that मुझे काफी प्लानिंग करनी पड़ती है, मुझे काफी लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, मैं एक साथ 50 लाइसेंस लेकर नहीं रख सकता हूँ, वो काफी वेस्ट हो जाएगा, वो मेरा काफी पैसा उसमें अननेसेसरी वेस्ट हो जाएगा। जितने बच्चे ज्वाइन करेंगे मैं उनके लिए लाइसेंस लूंगा, तो प्लीज, अरे सॉरी सान्विका, पूजा, यस, एनी क्वेश्चन? पूजा, कोई क्वेश्चन है आपके पास सान्विका के लिए? नो एनी नो मोर क्वेश्चंस। ठीक है, काफी
सान्विका में काफी इम्प्रूवमेंट है, इसलिए क्या पूछोगे, कुछ भी नहीं। नहीं, सान्विका में तो काफी इम्प्रूवमेंट आया तो मुझे दिखता है, और क्योंकि उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है इसलिए मैंने देखा उसमें काफी चेंजेस आए हैं कम्युनिकेशन में, बहुत। हाँ, इम्प्रूवमेंट तो है, और वो करेगी, ज्वाइन करेगी वो क्लासेस। ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट, अरे मुझे देखा कि कॉन्सेप्ट समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। जिस चीज को भी इंटरेस्ट है अपने बच्चों के लिए, आप प्लीज आज मुझे एक मैसेज कंफर्म कर दीजिए, सो दैट मैं उसके लिए प्लानिंग करूं। मेरे साथ ऐसा नहीं कि आज आपने बोला और मैं कल उसका कोचिंग शुरू कर दूं। मुझे काफी प्लान करना पड़ता है, मुझे काफी उसके क्रेडेंशियल बनाने पड़ते हैं, काफी लॉगिन सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है, मुझे काफी कुछ प्लान करना है बच्चे के लिए। सो प्लीज, इन केस यू आर इंटरेस्टेड, एंड आई से, मेरे साथ हमेशा एक चीज रहता है, मैं अपने वाइफ के बिजनेस को प्रमोट करता हूं, तो एक चीज मैं जरूर करता हूं और बड़े कॉन्फिडेंस से करता हूं, ये जो चीज है, इस जो ब्रोशर में मैंने डाला है, ये भी जरूर पढ़ना आप। ये मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि मेरे साथ जो भी काम करो, जो भी पढ़ाई करो, मेरे लिए बिल्कुल, मेरे साथ बिल्कुल आप जीरो रिस्क पे आओगे, क्योंकि मेरा जो फी, जो भी रिफंड पॉलिसी है, वो चाहे खाने का सामान बेच रहे हैं, चाहे जो भी बेच रहे हैं, मेरी जो फी रिफंड पॉलिसी है वो 100% पॉलिसी है। कोई क्वेश्चन नहीं मैं पूछता हूँ किसी से, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, कलेक्ट ऑल योर मनी एंड इट्स ओके। मैं कभी भी नहीं, तो मेरे साथ जो भी अटैच होता है किसी भी चीज में, बिल्कुल जीरो रिस्क पे अटैच हो सकते हैं। आपके पास कोई एक पैसे का रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क पे आ सकते हो आप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे से आज तक किसी ने कोई फी रिफंड मांगा नहीं है, थैंकफुली अभी तक किसी ने मांगा नहीं है, ना खाने पीने के सामान में, ना मेरे डेटा साइंस में, ना मेरे एकेडमिक में, किसी में कभी मांगा नहीं किसी ने आज तक, बट बिकॉज आई वांट टू डिलीवर। Okay, thank you everyone. Thanks a lot for your time, and do confirm in case you are interested, so that we start planning for your kids. Okay, all the best. Thank you so much for your time. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.